Guys, we'll wait 2-3 minutes, then I'll start. Let everyone join before. Okay? आवाज आ रही है सबको? Okay guys, we'll start now. कल मैंने आप लोगों को ऑसिलेशन चैप्टर बोला हुआ था, क्या रिवाइज किया है आप लोगों ने? हाँ सर। गाइस कुछ सिनॉप्सिस स्टार्टिंग में मैं करा देता हूँ, ये लेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फटाफट चलेंगे. ओके, थोड़ा फॉर्मूलास करा देता हूँ, उसके बाद विल स्टार्ट. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes sir. Okay, let me know the guys, what do you mean by the restoring force? The force required to bring the particle to its main position. Back to its main position. Where, Yes or no? where the motion started. So F is equal to minus kx. And similarly, we having a force constant, restoring force per unit displacement. Yes or no? Yes sir. And what about the constant term? अगर omega होगा, so we are able to use under root k upon m. Is that clear? Yes sir. That is the constant equation of SHM. After that, we having a differential equation of SHM. Okay. So what was that? Differential equation क्या था? Differential equation क्या था? पढ़ा ना आप लोगों ने? अदिति, कीर्ति, खुशी, मोहम्मद, ओमकार, प्राची, आवाज आ रही है सबको क्लियर? Yes or no, Yes, everyone? sir. What about the differential equation of linear SHM? That should be the d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. Is that clear? Yes sir. After that, we having a 3 derivation on the basis of acceleration, velocity, and the displacement. So acceleration equation, linear acceleration of SHM, that should be the minus omega square x. A minimum should be a 0. तो minimum पे कोई related question नहीं होगा. A maximum should be a plus minus omega square x. याद रखना.
Similarly, we are having a velocity. So velocity of SHM, that should be a V is equal to what? क्या फॉर्मूला था? V is equal to? Omega by 2 pi. No. No, sorry. ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितनी? ऑसिलेशन sir. चैप्टर नहीं रिवाइज किया. At mean position, we are having a maximum velocity. याद रखना है आप लोगों को. At mean position, we are having a maximum velocity. That should be omega into a. So V max और A max में condition generate हो सकते हैं. बात याद रखना. And at extreme position, लिख लो पहले ये formulas लिख लो. Write down that formula, everyone. If you guys done, then let me know, huh? मोहम्मद, आवाज आ रही है? मोहम्मद, पढ़ा या नहीं चैप्टर? खुशी? नहीं किया मैंने. क्यों? Sir, I was doing some other subject. जिस दिन जो चैप्टर का रहता है लेक्चर उसको एक बार गो थ्रू कर लिया करो. महालक्ष्मी, व्हाट अबाउट यू? महालक्ष्मी, प्राची, खुशी, ओमकार. तो लिख लो एक बार फॉर्मूला शॉर्टली रिवाइज करा दे रहा हूं. लिखा सबने? Yes, sir. रैप करूं? रैप कर दूं? Yes, sir. तो गाइस वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है. सो एट एक्सट्रीम पोजीशन in extreme position guys, we are having a minimum velocity 0. लिख लो. याद रहेगा क्योंकि गाइस कोनिकल पेंडुलम को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग देखेंगे कि मीन पोजीशन, ये हमारा मीन पोजीशन है, राइट? एंड हियर वी हैविंग अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, हियर वी हैविंग अ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. तो गाइस अगर कर्व पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके जा रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी वेलोसिटी होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे ट्रैवल करके गया है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी या एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी. Angular velocity. तो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिलनी चाहिए. लीनियर वेलोसिटी तो इस जगह पे 0 होगी. यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे भी मिनिमम 0 क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे ट्रैवल करके गया है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करके नहीं गया है. समझे? समझे सब? Yes, sir. Okay. After that, guys, we are having a displacement equation. What was that? Displacement equation क्या था? Our displacement equation, standard equation था x is equal to a sin
omega t plus alpha, right? And when particle starts from mean position, then the formula should be x is equal to a sin omega t. And if particle starts from extreme position, then the formula should be a cos omega t. याद रहेगा सबको? स्टैंडर्ड है तो x इज इक्वल टू a sin omega t प्लस अल्फा. मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो x इज इक्वल टू a sin omega t. एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो x इज इक्वल टू a cos omega t. Is that clear? Yes, sir. Okay. After that, guys, we are having a spring mass oscillator. So first, let me know the frequency. Frequency का standard formula क्या है? 1 upon time period. 1 upon time period. Time period की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 pi upon omega. Omega. Omega ऊपर जाएगा. Yes, sir. Omega upon 2 pi, right? तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं k बाय m. अभी दिया था ना कुछ देर पहले. Yes, sir. Yes, sir. So that is the spring mass oscillator frequency, either the frequency of SHM, either the frequency of oscillation. ये तीन फ्लक्चुएशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको. और सिमिलरली हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ SHM, either the time period of oscillation, either the spring mass oscillator. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन n. तो पूरा स्टेप उल्टा हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. इज दैट क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये पूरा. चाचा को बुला रहा है. चाचा अभी आ रहे, थोड़ी देर में आए थे अभी. कीर्ति, कीप योर माइक ऑन म्यूट. Sorry. डन ऑल लिखे हुआ. Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर दो कंडीशन में होते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में. सुना आप लोगों ने? हाँ, sir. Yes, sir. तो जब सीरीज में होगा तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होगा. Okay, so here we having a k1, here we having a k2. तो इफेक्टिव कांस्टेंट इक्वेशन होगा इफेक्टिव मतलब रिजल्ट. ओके, विच इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 1 अपॉन के. इफेक्टिव को मैं k डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 एंड सो ऑन, अगर सीरीज में होगा तो. पर अगर यही पैरेलल में होगा तो पैरेलल में इक्वेशन होंगे इसके m k1 k2. so here we having a k parallel. एक काम करो इसे k सीरीज दे दो. k parallel which is equal to k1 plus k2 and so on. सुना सब लोगों ने? सीरीज और पैरेलल में कैसे रखना है इनको? Yes, sir. Yes, sir. तो जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में आ सकता है.
डायग्राम बना के फॉर्मूला लिख लो। And if you done, then let me know, huh? Yes, sir. Done all? Yes, sir. Okay. After that, guys, what do you mean by the epoch of SHM and phase of SHM? इस साल के सिलेबस में ये वाला पार्ट निग्लेक्टेड था, बट गाइज मैंने पढ़ाया था, इसके कुछ पॉइंट्स दिए थे सब लोगों को। गाइज इपोक ऑफ एसएचएम का मतलब होता है स्टार्टिंग फेज। नीट जेई में इसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास इपोक ऑफ एसएचएम मतलब टाइम शुड बी 0, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। सो टाइम शुड बी 0, तो ओमेगा 0 हो गया। So here will remain only x is equal to a sin alpha, and if you find out the alpha, a इस साइड आ जाएगा x upon a sin inverse x upon a, यहाँ sin inverse x upon a. So that is the epoch of SHM, and after that we are having a phase of SHM. Phase of SHM. So guys, in phase of SHM, x is equal to a sin omega t plus alpha. So that omega t plus alpha, which is representing the phase of SHM. Phase of SHM. लिख लो इन्हें। Done all? Yes, sir. Okay, what about the kinetic energy of SHM? What about the kinetic energy of SHM? Kinetic energy फॉर्मूला क्या था? कीर्ति, Half m हाफ के half a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। yeah. के को रिप्लेस कर सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर से। Yes, a sir. square minus x square, that is the kinetic energy of SHM, everyone. After that we are having a potential energy of SHM. That potential energy of SHM half k x square. Either we are able to replace k with m omega square x square. We are having a total potential difference, total energy. So total energy formula should be a half k a square. समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir.
तो वापस के को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा को रिप्लेस कर लेंगे 2 पाई n से, so 1/2 m 4 pi square n square a square, 2 and 4 get cancel, here we remain the 2 m pi square n square a square. मतलब इस तरीके से ये ओमेगा भी रिप्लेस हो सकते हैं, बात याद रखना। ओके लिख लो इन शब्द को। लिख रहे हो या नहीं आप लोग? सर लिख रहे हैं। यस सर लिख रहे हैं। गाइस ये चैप्टर में सिनॉप्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के भरोसे नहीं बैठा हूं, करा रहा हूं तो एटलीस्ट लिख के जरूर रखना। वेरी गुड खुशी, लिख लो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सर क्या हुआ? वो कितनी? सेकंड लास्ट लाइन पे क्या है? 1/2 m 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब ओमेगा को 2 पाई n से रिप्लेस किया हुआ है। डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के गए इस चैप्टर में एक फॉर्मूला मिला हुआ है हम लोगों को। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था? क्या था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? गाइस पूरे फिजिक्स में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, समझ रहे हो आप लोग? दो फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला इसी चैप्टर में था। वैसे तो दोनों फॉर्मूलाज ऑलरेडी आप लोगों ने मैथमेटिकल मेथड में देखा हुआ है। क्या फॉर्मूला था कीर्ति, महालक्ष्मी? R is equal to under root R1 square plus R2 square. R is equal to अंडर रूट R1 square plus R2 square. रॉन्ग है कीर्ति। महालक्ष्मी क्या बोल रहे हो आप? इस चैप्टर में क्या था एटलीस्ट वो तो बताओ तुम लोग। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा या फिर कॉस अल्फा माइनस अल्फा 2। बताओ अगर आप लोगों ने कोई फॉर्मूलाज देखा ही नहीं है तो किस बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल करते, मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ, जब इतने छोटे छोटे फॉर्मूलाज आप लोगों को पता ही नहीं है। आई श्योर एवरीवन कि आप लोग न्यूमेरिकल करने आए हो नीट और जेई का? मैथमेटिकल मेथड में रेजोल्यूशन वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। पूरे फिजिक्स में ये दो ही फॉर्मूलाज हैं, याद रखना। सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अगर एंगल होगा तो पहला वाला फॉर्मूला, एंगल नहीं होगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं याद है यार आप लोगों को, कैसे करोगे क्वेश्चन? आई डोंट नो। And here we are having a phase difference that should be delta is equal to tan inverse a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 upon a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2। ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, याद रखना। सुना सब लोगों ने? And similarly we having a time period of simple pendulum also, t is equal to 2 pi under root l upon g, that is a time period of simple pendulum। लिख लो ये पूरा। Done all? Yes, sir. What do you mean by the damping force? The force which slows down the oscillatory motion. कीर्ति आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। The force which resists or slows down the oscillatory motion. Not about the force. Damping oscillation which is representing the decreasing amplitude with respect to time. Yes, sir. So guys, damping force में damping force मतलब damping कंडीशन में डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला जनरेट होता है। ये जो डैम्पिंग है ये दो कंडीशन से हो सकते हैं, या तो एयर रेजिस्टेंस से हो सकता है या फिर लिक्विड रेजिस्टेंस, मतलब फ्लूइड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। Air. तो डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? That damping force which is equal to minus bv, and b which is representing the damping constant fd upon v, that is a damping constant formula. And we having a differential equation of damping oscillation also, so that should be m d square x upon dt square plus b dx upon dt plus kx is equal to 0. That is a differential equation of damping oscillation. And we having a damped amplitude also, so that is the damped amplitude ad, which is equal to a e raised to minus bt upon 2m. That is a damping amplitude, everyone. Is that clear all? Yes, sir. लिख लो।
एटलीस्ट कुछ तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों की हेल्प करेंगे। Done all? Yes, sir. Done all? Shall we move? Yes, sir. Okay. Notes निकालो सब लोग. Open the page number 155. Open the page number 155, everyone. Yes, sir. निकाला सबने? Hmm. अब गाइस जितने भी स्प्रिंग मास ऑसिलेटर दिखाई देते हैं सबको टिक करो, पहले वही करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 34 टिक किया, Yes, sir. एंड क्वेश्चन नंबर 38। और गाइस जो क्वेश्चन नंबर 40 देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 जैसा क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. देन डू इट। वैसे क्वेश्चन नंबर 40 भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन टिक किए? 17, 22, 34, 34, 38. 34, 38। ओके, डू इट। गाइस पहले क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो, फ्लक्चुएट नहीं हो जाना। क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से रीड करो। सर मुझे ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए क्यों? रीजन? सर क्योंकि जो मास है सर दोनों के बीच में है सर, तो वो माइनस होगा सर, ऐड नहीं कर सकते।
थोड़ा और अच्छी तरीके से सोचो मोहम्मद। मैंने स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में दो कंडीशंस दिए हैं, कौन से? सर एक पैरेलल। सीरीज और पैरेलल। क्या आप लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया क्या ये सीरीज है कि पैरेलल है? पहले वो करो एंड लेट मी नो। सॉरी, Series. ध्यान से, Parallel नीट और है। जेई के क्वेश्चन में। कीर्ति समझ में आया कैसा है ये, पैरेलल है या सीरीज है? Series. But नहीं खुशी, रॉन्ग है। देखो यहां पर जो डायग्राम दिया हुआ वो इस तरीके से दिया है। मतलब दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग के बीच में मास रखा हुआ है, यस और नो, और दोनों स्प्रिंग रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, यस और नो ऑल। यस सर। so ये सीरीज जैसा दिखा रहे हैं लेकिन सीरीज नहीं है ये। we can consider it parallel. यस, वी नीड टू कंसिडर इन पैरेलल बिकॉज ये पैरेलल है ही है, दो स्प्रिंग है, रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। ये इस तरीके से हैं। समझे आप लोग? तो ये के है और ये 2K है। 3K. क्या हुआ मोहम्मद? सर ऑप्शन सी आएगा फिर सर, 3K हो जाएगा। यस, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3K होगा, क्योंकि पैरेलल में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो KP विच इज इक्वल टू द K1 प्लस K2, K प्लस 2K, इट विल बी ए 3K, यस और नो। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 pi into under root K by M. K बाय M, तो K की जगह पे क्या हो जाएगा? 3K. 3K। 3K। मिला सबको आंसर? Yes, sir. तो गाइज ये तो फ्रीक्वेंसी के लिए मिला है। अगर सेम क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछते तो उसी को उसका इनवर्स ले लेते 1 by whatever answer we got. so whatever you got, let me know na what you got. 1/2 Half. upon K. Frequency formula should be a 1/2 pi under root K upon M. So instead of K we need to put over there 3K upon M, yes or no? Yes, sir. And after that we need to suppose in question they ask the time period of frequency of either the time period of spring mass oscillator. So same concept, we'll find out the time period equation over there. So T is equal to 2 pi under 2 root pi M upon, under root M upon 3K. right. समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते Yes, थे, sir. एक फ्रीक्वेंसी से और एक टाइम पीरियड से। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ में आया क्या गलती हो रही थी? Yes, हाँ. sir. So हाँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर एक मास के ऊपर दो साइड से या फिर किसी भी दो डायरेक्शन से स्प्रिंग मास ऑसिलेटर अटैच्ड है, देन वी कैन टेक इट एज पैरेलल, राइट? यस। अगर देखो उनको सीरीज देना होगा ना तो सीरीज में कैसे होगा, वेट आई लेट यू नो। ये सब लिखा ना आप लोगों ने? यस सर. हाँ, sir. देखो जब भी अगर उनको सीरीज मेंशन करना होगा ना तो सीरीज हमेशा इसी तरीके से होगा, मास को एंडिंग में पुट करेंगे। अगर मास को मिड में रखा है मतलब पैरेलल है, तो फिर रिजिड सपोर्ट ऊपर हो जाएगा और दोनों मास नीचे हो जाएंगे, तो दोनों स्प्रिंग इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे। यस सर. कब? जब मास मिड में होगा तो ऐसे दिखाई देंगे, और अगर मास एंडिंग पॉइंट में होगा
तो ये इसी तरीके से दिखेगा सीरीज फॉर्मेट में। तो सीरीज के लिए हमेशा इसी तरीके से रखना होगा, समझे सब? यस सर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। Sir, option A. Why? Sir, because the frequency will remain the same because sir the mass is attached to a spring sir. However, sir जो mean position है, as soon as the electric field has come into action, वो change हो जाएगा sir because of the force acting on the charge. तो उसका mean position sir थोड़ा सा deflect हो जाएगा. थोड़ा और अच्छी तरीके से मोहम्मद, नहीं क्लियर हुए पॉइंट्स, थोड़ा और अच्छे तरीके से। Okay sir, पूछिए. आंसर राइट है, लेकिन इसका Sir, value एक्सप्लेनेशन थोड़ा और अच्छी। हाँ सर सेम रहेगा सर और जो मास है वो भी सेम रहेगा सर। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो के और उस पे मास पे डिपेंड करता है सर, तो वो चेंज नहीं होगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होगा तो उसकी वजह से जो मास है जिस पे चार्ज है पॉजिटिव, उस पे सर फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा उसका। देखो, आपके पॉइंट को ना थोड़ा सा सही डायरेक्शन दे देता हूँ। सही बोल रहे हो आप, ऑप्शन सही है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो एग्जाम में जाके प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी से क्लियर करके रखो। देखो, एसएचएम के मैंने दो कंडीशंस बता रखे हैं आप लोगों को। फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब हमेशा किसके टुवर्ड्स जाता है? मीन पोजीशन के टुवर्ड्स। यस सर। तो यहाँ पे स्प्रिंग को क्या किया, एक साइड से कनेक्ट किया, दूसरे साइड से हम लोगों ने क्या अप्लाई किया हुआ है? चार्ज। मतलब ये स्ट्रेच्ड मैनर में है। कौन से मैनर में है? स्ट्रेच्ड। सो इन दैट केस व्हेन वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कैसे शो किया, रिजिड सपोर्ट के टुवर्ड्स किया है। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अंदर अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसे मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे ये एज ए रिस्टोरिंग फोर्स कंडीशन एक्ट करेगा। यस। तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन के टुवर्ड्स ये क्या होगा? शिफ्ट होगा। अब बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग। ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन। देखो, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा बट मीन पोजीशन सेम नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा ये अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड, ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन, पॉसिबल ही नहीं है फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो और फिर मीन पोजीशन के टुवर्ड्स शिफ्ट हो। फोर्थ, ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। यस और नो ऑल? यस सर। Yes, sir. ठीक सर। क्वेश्चन नंबर व्हाट? 34. आई होप ये तो कर लोगे, पैरेलल में है, दिख रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट।
कुछ समझ में आया? Yes, sir. Do it, do it. Done all? Come on, let me know, everyone. B. How? खुशी, मुझे आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाली ये जानना आप लोग सॉल्व कैसे कर रहे हो। सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके नीट और जेईई में, ये बात याद रहे सबको। मोहम्मद, कीर्ति, महालक्ष्मी, लेट मी नो ऑल। सर मेरे कैलकुलेशन में गलती हो गई, कुछ गलत आया मुझे। करेक्ट करो, चेक करो वापस। हाँ सर। कीर्ति, महालक्ष्मी, what about the Yes, answer? sir. What about Sir, the answer? 59.15 Newton per meter square. 59 point 5 Newton per meter square. राइट है। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन पर मीटर इनवर्स, Sorry. न्यूटन मीटर इनवर्स। लिसन, यहाँ पे न्यूटन मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, मतलब ये बात तो क्लियर कर दिया है कि आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। Yes, sir. यस और नो? मतलब फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यही था ना रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला। अब पैरेलल के टर्म में रखा हुआ है, तो पैरेलल क्या होगा, के इफेक्टिव विच इज इक्वल टू दी k1 plus k2, right? Yes, sir. So that will be a 2k, मतलब k plus k, it will be a 2k, मतलब पैरेलल की जगह पे विल राइट 2k। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, टाइम पीरियड ही क्यों, टाइम पीरियड ही फॉर्मूला क्यों लेना है, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं ले सकते? पीरियड ही दिया है, क्या दिया है? टाइम पीरियड डायरेक्टली मेंशन्ड है। टाइम पीरियड मेंशन है, मतलब ये बात क्लियर कर दिया है कि वी नीड टू यूज द टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k पैरेलल, राइट? सो k पैरेलल की जगह पे विल राइट 2 पाई अंडर रूट m upon 2k, yes or no? If we take the square on both the sides, so it will be a 2t square 4 pi square m upon 2k, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट है ना? तो अगर मैं Yes, यहाँ sir. से k फाइंड आउट कर लूं तो k ऊपर जाएगा और टाइम पीरियड कहाँ पे आएगा, नीचे, yes or no? तो मतलब 4 pi square m upon 2t square, where 2 and 4 get cancelled, so here will remain 2 pi square m t square, yes or no all?
Yes, sir. So keep that 2 as it is. Pi का square कितना है? 3.14 into square. So 9.86. yes, sir. 9.86 multiplied by m. M how much? 12. 12 kg. और टाइम पीरियड कितना है? 2 seconds. 2 seconds. 2 सेकंड. मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. 4. तो अब तो इजी हो गया ना. Yes, sir. 2 2 जा 4 और ये 6. 6 into 9.86 how much? Mm. 118.3. कीर्ति क्या कर रहे हो? 6 into 9.86. 1 second. Sorry. आराम से. मतलब 60 के आसपास ना. चलो अगर मैं यहाँ पे 9.86 को 60 के आसपास ले लूं, मतलब 10 ले लूं. 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 60. तो देखो 60 से रिलेटेड आंसर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे 34 में? Sir, 59.16. 59.15. ऐसा भी तो कर सकते हैं ना हम लोग एग्जाम में. ऐसा डायरेक्ट मतलब इमेजिन कर सकते हैं. 9.86 है मतलब 10 से ले लो, 10 ले लो, 10 इमेजिन कर लो मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 60 से जो भी क्लोजर आंसर होगा उसको टिक कर दो. खत्म. यहाँ पर थोड़ी ना हम लोगों को आंसर पता ही नहीं है. अपने पास 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना. चारों ऑप्शंस का यूज करना है अपने को. यस और नो? समझे सब? गाइस ब्लाइंडली सॉल्यूशन के पीछे मत भागो. अपने सॉल्यूशंस क्रिएट करो. ओके. तो अब कौन सा क्वेश्चन? 38. Yes, sir. 38. 38. के बाद 39 भी ट्राई करना है. Read the question carefully everyone. डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं लग जाना. पहले क्वेश्चन ध्यान से रीड करना सीखो. चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं ना? Yes, sir. The period of oscillation of mass capital M suspended from a spring of negligible mass is T. If along with if another mass M is also suspended, the period of oscillation will now be. टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज करना, ये बात तो क्लियर है अभी. Option D. Which option? Option D. How? Why option D?
Sir, by solving, we can take it Then as T1 and T2, and then as there is a on the second option we can put mass is equals to 2m. And similarly, when we find out, then they're different. Then T2 is equals to root 2 into T1. how we get the Then root? How we get the root? because mass was under root. So first let me know the formula of time period. 2 pi into root m by k. Root m by k, right? Hmm. That is our standard formula. Yes, sir. Wait, huh? It is our standard formula, everyone. Yes, sir. So we'll take as a T1. That's our equation number 1. 1. After that, क्या बोला है यहाँ पे? When another mass is also suspended with it. तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, डायग्राम बना के समझ लेते हैं. हमारे पास पहले एक रिजिड सपोर्ट था और यहाँ पे स्प्रिंग है. Here we are having a spring, and at the end we kept the one mass. That should be a m. Okay. So here we'll get the T1 is equal to 2 pi under root m upon k. When we added the one extra mass at Then the m ending plus point, m. so m plus m. एक काम करते हैं, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? तो ये T1 के लिए था. Yes, sir. अगर T2 के लिए चेक करेंगे हम लोग, ओके. सो m plus m. सो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा? T2 which is equal to 2 pi 2 pi under root 2m. 2m upon k. Yes, sir. Yes or no everyone? Yes, sir. तो यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से 2 को कंपेयर करें तो क्या होगा? हमारा जो T2 है Is वो equals to अंडर रूट under 2 root टाइम्स 2 ग्रेटर है into T1 T1. से. यस और नो? Yes, sir. लिख लो. And if you're done, then try question number 39. अच्छा गाइस, थोड़ा ट्रेस करके पढ़ना. हाँ, कुछ अनवांटेड क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे. Okay. लाइक वो हर Okay, बुक में ही sir. रहता है. क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 21. गाइस ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, दे ऑल आर अ डबल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस. हाँ, याद रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 में तो डायरेक्टली शो करता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम. यस और नो? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर Yes, sir. एसएचएम के जैसा ही फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. यस और नो? या फिर एक काम करो, इसको इक्वल के दूसरे Yes, साइड लेके चले जाओ. इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यस और नो एवरीवन? यस और नो ऑल? yes, sir. तो गाइस सेम फॉर्मेट में यहाँ पर भी दिया हुआ है. 2d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर
plus 32x is equal to 0. yes or no? तो हम लोग क्या करेंगे, 32x को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, -32x 2 को इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर. अपने ओरिजिनल स्टेप से सेटिस्फाइड करने के लिए तो -32 डिवाइड बाय 2x, so they got cancel, here will remain the 16, d square x upon dt square is equal to -16x. मतलब यहाँ पे कंपेयर करें हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को, मतलब इक्वेशन 1 जो स्टैंडर्ड है, इक्वेशन 2 जो हम लोगों ने जनरेट किया है, तो ओमेगा की जगह पे क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 4. ओमेगा इज इक्वल टू 4. तो अब आगे का बताऊं या कर लोगे? So will do. Do it. Done, sir. Done all. क्या आया? 5/2. ओके. क्वेश्चन नंबर व्हाट? इसके बाद कौन सा बोला था? 21. 21. डू इट. Sir, B आ रहा है 2 seconds. आया सबको 2 seconds? हाँ sir. What about all? Let me know. 2 seconds आया सबको? गाइस इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. क्या बोला है यहाँ पे? That A max which is a pi time with the V max. So A max Yes. क्या है? Omega square A. Omega A square X. max which is equal to the pi times of V max. तो अभी कुछ देर पहले ही दिया है मैंने. A max क्या था? हाँ sir. ओमेगा स्क्वायर A Yes sir. is equal to pi. V max Omega की A. जगह पे क्या होगा? ओमेगा इंटू A.
तो देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ए, और यहाँ पर क्या है, पाई ओमेगा ए। तो अगर दोनों को कंपेयर करूं तो दिख रहा है ना, ओमेगा की जगह पे क्या है, पाई। ओमेगा की जगह पे पाई। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह पे पाई, सो 2 पाई अपॉन पाई, दे बोथ गेट कैंसिल, हियर विल रिमेन द 2। समझ में आ रहा है सिनॉप्सिस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सुनो एवरीवन, गाइस सिनॉप्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। सुना सबने? यस सर। हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करो, और क्या। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन रीड किए क्या आप लोगों ने? यस सर। A body of mass 5 gram is executing SHM about a fixed point O with an amplitude of 10 centimeter. Its maximum velocity is 100 centimeter per second. Its velocity will be a 50 centimeter per second at distance in centimeter. मतलब सब कुछ सीजीएस में है, तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, समझ रहे हो? सुना सबने? यस सर। तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या है? मास है, हम्म। एम्पलीट्यूड है, मास, मैक्सिमम वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मास कितना है? 5 ग्राम। ग्राम, 5 ग्राम। और एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। याद रखना, गिवन लिखने की आदत डाल लो, बताया है ना मैंने पहले भी, ये गिवन आपको हेल्प करेंगे। वी मैक्स गिवन है कितना? 50 वी मैक्स 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। तो वी मैक्स कितना है, क्या है? ओमेगा इंटू ए 100। सो ओमेगा फाइंड आउट करूं तो 100 अपॉन ए हो जाएगा। ए कितना है? यस सर, 10। सो ओमेगा शुड बी 10 रेडियन पर सेकेंड। यस और नो? यस यस और सर। नो एवरीवन? और क्या गिवन है? और कुछ गिवन है? At some distance, the velocity changes to 50 centimeter per second, and we have Its to find velocity will be, listen, we the having a distance. standard formula of velocity, that is our normal velocity. So velocity should be a 50 centimeter per second, right? So Yes, standard sir. velocity formula should be a v is equal to what? Omega multiplied by under root a square minus x square. A square minus x square. So if we take the square on both the Yes. side, that equation will look like a v square omega square.